فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ مسلمانوں نے 500 سال تک نماز پڑھی لیکن بابری مسجد کو ان سے منظم طریقے سے چھین لیا گیا۔ اسد الدین اویسی نے زندگی کے وقار پر طنز کیا۔ جی ہاں، ایودھیا میں 22 جنوری کل منعقد ہونے والی تقدس کی تقریب سے پہلے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں سے بابری مسجد کو منظم طریقے سے چھیننے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ہفتہ 20 جنوری کو رام جنم بھومی مندر پران پرتشٹھا کے افتتاح کو چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کو منظم طریقے سے ہندوستانی مسلمانوں سے چھین لیا گیا، حالانکہ وہ وہاں 500 سال سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ساتھ ہی مسجد کے وقار کو بھی نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ ریاست کی طرف سے رات کے اندھیرے میں بت مسجد کے اندر رکھے جاتے تھے اور پھر انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ اسد الدین اویسی نے زندگی کی وقار پر طنز کیا۔ 21 جنوری کو سکندرآباد میں 357ویں پرکاش پورب کی تقریبات۔ اس تقریب کو معروف راگی جتھوں، مذہبی مبلغین کے ذریعے گربانی کیرتنوں، مقدس بھجن اور گربانی وچار کی تلاوت کے ذریعے نشانزد کیا جائے گا، جنہیں شب کیرتنوں کو پیش کرنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں 357واں پرکاش سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو اور خالص پنتھ کے بانی سری گرو گوبند سنگھ کے پرب مقدس جنم دن کے تقریبات کے ساتھ ساتھ پربندھک کمیٹی گرودوارا صاحب سکندرآباد کے زیر اہتمام بڑے پیمانے پر ایک وشال دیوان کا انعقاد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اسی موقع پر GSS پربندھک کمیٹی کے صدر S بلدیو سنگھ بھگا، جنرل سیکریٹری S جگموہن سنگھ اور سیکریٹری S ہرپریت سنگھ کلاٹی نے کہا کہ ایک وشال دیوان، ایک بڑے اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا جہاں سینکڑوں سکھ عقیدت مند اور دیگر کمیونٹی عقائد جمع ہوں گے۔ تلنگانہ سے ایودھیا دھام جانے والے مادھو سوریہ نارائن جادھو کا بہترین استقبال۔ شہر میں انڈیا اینٹی کرپشن فورس کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ وپن مشرا، ایڈوکیٹ ترجمان دیویندر پاٹھک، میڈیا انچارج امیش تیواری، ایڈوکیٹ رتنیش مشرا، گریش مشرا تلنگانہ کے کبیر سے ایودھیا دھام تک پیدل سفر کر رہے ہیں۔ رام للا کے تقدس کی تقریب میں مادھو سوریہ نارائن جادھو کو پھولوں کی مالا چڑھا کر استقبال کیا گیا اور رام بھکت کی مہمان نوازی کی گئی۔ جی ہاں، تلنگانہ سے ایودھیا دھام جانے والے مادھو سوریہ نارائن جادھو کا بہترین استقبال کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے ادبی میلے میں سینما کی چمک۔ یہ خصوصی شوکیس ہر عمر کے لیے مفت اسکریننگ پیش کرتا ہے، لہٰذا جائیے اپنے سینما کے حواس سے لطف اندوز ہو جائیے۔ HLF 2024 میں کہانی سننے اور سنانے کا تجربہ حاصل کریں۔ ایک متحرک ادبی اور ثقافتی اسراف کا حصہ بننے کا یہ سنہری موقع ضائع نہ کریں۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد کے فلم کے شائقین کے لیے بڑی خوشخبری۔ حیدرآباد لٹریری فیسٹیول HLF آپ کے لیے موونگ امیجز ٹاکیز سیکشن میں فکر انگیز فلموں کا ایک منتخب انتخاب لا رہا ہے۔ عصری موافقت سے لے کر دلچسپ دستاویزی فلموں اور دل دہلا دینے والی تصویر کشی تک یہ آپ کے لیے بصری کہانی سنانے کی دنیا میں غوطہ لگانے کا سنہری موقع ہے۔ بتا دیا جائے کہ 26 سے 28 جنوری کے لیے اپنے کیلنڈرز کو آپ نشانزد کر سکتے ہیں اور سینما کی دعوت کے لیے ستوا نالج سٹی، ہائی ٹیک سٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو گرہ جوتی کے تحت مفت بجلی نہیں مل جاتی تب تک آپ کرنٹ بل ادا نہ کریں۔ BRS لیڈر راما راؤ نے کہا۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے اس ہفتے کے روز کہا کہ تلنگانہ میں لوگوں کو موجودہ بلوں کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ کانگریس حکومت اپنے انتخابی وعدے کے مطابق گرہ جوتی اسکیم کے تحت مفت بجلی فراہم نہیں کر لیتی۔ انہوں نے یہ بات آئندہ لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر حیدرآباد اور سکندرآباد پارلیمانی حلقوں کے BRS قائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ KTR کا کہنا ہے کہ لوگوں کو موجودہ بلوں کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ گرہ جوتی یوجنا کے تحت مفت بجلی فراہم نہیں کی جاتی، جیسا کہ ریونت ریڈی نے وعدہ کیا تھا۔ بتا دیا جائے کہ گرہ جوتی اسکیم کے تحت 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جانی چاہیے۔ راما راؤ نے کہا کہ ان کی پارٹی حکمران کانگریس کے انتخابی وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدوجہد کرے گی۔
सी एम नीतीश की बड़ी कार्रवाई, चंद्रशेखर को महकमे तालीम से हटाया गया, आलोक मेहता नए वजीर तालीम होंगे, 3 वज़रा के चार्जेस तब्दील कर दिए गए। रियासती हुकूमत ने वजीर तालीम चंद्रशेखर को जो अपने बयानात की वजह से मुसलसिल तनाज़ात में आते रहते हैं उनको मज़कूरा महकमे से बर्खास्त कर दिया है। बता दिया जाए कि रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स के वजीर आलोक मेहता को महकमे तालीम का नया वजीर बनाया गया। इसी के साथ ही चंद्रशेखर को निस्बतन कम अहम महकमे गन्ने के महकमे की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी सिलसिले में एक नोटिफिकेशन इस हफ्ते को रात 9 बजे के बाद चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से जारी किया गया। महकमे रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स का इजाफी चार्ज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर ललित यादव को दिया गया। बताया जा रहा है कि इस जुमा को ही महकमे तालीम से चंद्रशेखर के जाने पर समझौता हो गया था, जब लालू प्रसाद और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने अपनी मांग जाकर वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 313 नए केसेस, जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 2041 हो गई। जी हां, हिंदुस्तान में एक दिन में कोविड-19 के 313 नए केसेस दर्ज किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर अब 2041 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत सेहत ने इस हफ्ते को इस बात की इत्तला दी है। बता दिया जाए कि वजारत की वेबसाइट के मुताबिक इस जुमा को मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 2331 बढ़ गई थी। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोविड-19 के यौमिया केसेस की तादाद दोहरे हिस्सों पर आ गई थी, लेकिन वायरस की नई झेली शक्ल JN.1 और सर्दियों के मौसम की वजह से ये केसेस में इजाफा हो रहा है। राहुल गांधी की क़ियादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 1 हफ्ता मुकम्मल कर चुकी है और 7वें दिन की यात्रा आसाम के बोगीनाडी से शुरू हुई। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में ख़त्म होगी और इस दौरान 67,000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 15 रियासतों के 110 अजला से गुजरेगी। आसाम में ये यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हफ्ते को आसाम के लखीमपुर जिले के बोगीनाडी से शुरू हुई। जैसे ही बस से सफर शुरू हुआ, सड़क के किनारे खड़े लोगों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने बस से उतरने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात की और उनके साथ चहलकदमी की। पार्टी की तरफ से मुश्तरका शेड्यूल के मुताबिक यात्रा कुछ देर के लिए गोविंदपुर लल्लोक में क़याम के। यहाँ सीनियर लीडर जयराम रमेश, जितेंद्र भूपेन बोरा और देबब्रता साइकिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किए। वादी कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच ठिठुरती सर्दियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताहम जम्मू सूबे में मौसमी हालात बेहतर हो रहे। चिली कलान नामी सख्त सर्दी के 40 दिनों के ख़त्म होने में तकरीबन 10 दिनों का ही वक्त बाकी है, मगर कश्मीरी बेबर्फानी सर्दी से खौफजदा हैं जो गर्मियों के महीनों में तबाही फैला सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में गिरचे रवां माह के आखिरी अयाम के दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है, ताहम वसी पैमाने पर बर्फबारी होने के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि वादी में 24 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि बाद में 25 से 27 जनवरी तक कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है और फिर 20 से 30 जनवरी तक भी कहीं कहीं हल्की बारिशें या बर्फबारी हो सकती है। महकमे के मुताबिक जम्मू खित्ते में आने वाले 2 दिनों के दौरान रोशनी और दर्जे हरारत में बेहतरी मुतवक्के है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -3.7, गुलमर्ग में -4.6 और पहलगाम में -5.5 था, जबकि लद्दाख खित्ते के लेह शहर में कम से कम दर्जे हरारत -13, कारगिल में -10.8 और दर्रास में -12.8 था। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. इराक में अमेरिकी एयरबस पर हमला, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। ईरान ने इराक में अमेरिकी एयरबस पर हमला किया है। ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने वाशिंगटन में अल असद एयरबस को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने एयरबस पर मुतादिद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि मगरबी इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले में कई अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी एयरबस पर यह हमला 20 जनवरी को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे हुआ था।
ज्यादातर मिसाइलों को अड्डे के फिजाई दिफाई निजाम ने रोका, जबकि दीगर के अड्डे पर खतरनाक असरात मुरत्तिब हुए। बता दिया जाए कि इस हमले में होने वाले नुकसान का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। ईरान ने अपना सबसे शानदार सैटेलाइट लॉन्च किया है। जी हां, ईरान ने इस हफ्ते के रोज कहा कि उसने अपने अब तक के सबसे ऊंचे मदार में एक सैटेलाइट कामयाबी के साथ छोड़ा है। इस प्रोग्राम में ताजा तरीन प्रोग्राम, जिससे मगरिब को खदशा है कि तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइलों में बेहतरी आएगी। बता दिया जाए कि ये ऐलान गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ इसराइल की जारी जंग और ईरान और पाकिस्तान की जानिब से एक दूसरे के ममालिक में टिट फॉर टैट फजाई हमले शुरू किए जाने के बाद मशरिकी वस्ता में कशीदगी में इजाफे के बाद सामने आया है। लिहाजा बता दिया जाए कि ईरान ने अपना सबसे शानदार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।